Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. All right, great. Give me a moment, please. Okay. Hi, everyone. Good afternoon. Hello, ma'am. Should we wait for 5 more minutes so that Sure, participants? sure. Yes, we can. Yeah.
Aditi, Yes, ma'am. कहाँ तुम्हारे पेज है वो 3-4 पेज Shall we start now, ma'am? just a second, ma'am. Yeah, Aditi. sure. Hi, good afternoon, ma'am. Good afternoon, one and all present here. I, Aditi Singh, Student Coordinator of Information Technology Department at Bharati Vidyapeeth College of Engineering, New Delhi. Welcome you all to the to be aware of SEO, where we can step in after a few years. So to enlighten us today with opportunities and skill set required for entering SEO industry, we have a special guest with us, Ms. Yamini Katara, Vertical Head of and training and proven track record in accelerating business growth by achieving desired goals of the optimization and optimizing big spreads. Strategic thinker and a problem solver with excellent decision making and leadership skills. It's an honor to have a speaker of such great repute with us. Now I request ma'am to please proceed with the session. Thank you, Aditi. Thank you to welcome me for this SEO webinar. And I hope and I will try my level best that you will learn SEO in this webinar so that you can implement in your digital marketing, because SEO is one of the skills that is the most in demand. Okay, so before moving ahead, I would like to thank you to all the college coordinators who invited me on behalf of CQS for this webinar, and really thankful to that. And let me start with my brief intro. But Aditi already mentioned about me, but it's a brief intro that you already know me. That my name is Yamini, and I am a Google certified digital marketing trainer, freelancer, and I also work as a vertical head of digital marketing in CQS Training Private Limited. All right, so I think that's enough for my introduction. If I talk about my experience, I have total experience of more than 5 years in the digital marketing domain only, right? So it's in training, freelancing, and I have trained thousands of candidates. And yes, obviously we have placed them also in good MNCs companies. Most of them are working from home, freelancing works, and most of them are YouTubers also, influencers also, right? So digital marketing is a very big field. SEO is a part of digital marketing. And if I would say about SEO, SEO is the most important part of digital marketing. Okay, so that will be we will be learning in this webinar. What are different types of SEO? What is this skill is about? Because this is not a course, or this is not something like that you need to just learn. No, it is the skill that you need to grab or you need to implement in your work. Okay, and I will let you know all the things practically, how you will do, how you will implement SEO strategies, right? So without wasting time, let's move ahead. And right, so let me just discuss with the agenda of today's webinar, so you will be clear what we are going to cover in this. Okay guys, and one more thing, I will take this webinar in both the languages, English and Hindi, so that you will be comfortable and you can understand the concept easily. Fine, any problem? Can we move ahead with both the languages? No issues with everyone? Yes, no? No, ma'am, Yes, no issues. Okay, because I want to grab the strategy. I want to grab you the implementation of SEO. Doesn't matter English है या हिंदी है, but आपको practically चीजें वहाँ पे आनी चाहिए. Yeah?
So let's start with the agenda. First, we will just take the brief intro of CQS, what CQS is, and then what is digital marketing, just a brief introduction. And then we will coming to the main important point, that is SEO, search engine optimization, and what are the different type of SEO, like on-page SEO, off-page SEO, technical SEO, local SEO. Although we have some more types of SEO, like in advanced SEO, we do some advanced analysis, but I will cover that also, don't worry. And we have voice search SEO also. You know, podcast is becoming very familiar or become very important nowadays, right? So podcast is their voice search, because जब से हमने देखा Siri है, Google Assistant voice search है, and Alexa है, तब से हम क्या करते हैं, voice search करके results we get from search engines, right? तो voice search की क्या strategy होती है, थोड़ा सा हम discuss करेंगे. And then in last, we will have our question and answer session. Whatever doubts you have, you can keep it with you during the session, and you can ask me at the end of the session of what you can do. If you have something important related to that topic, you can ask me there also, no issues. Okay? So, all right. So coming to the point of SEO, what SEO, CQS is. CQS training is an institute which is in Janakpuri, Delhi. We have 2 more branches also. Second is in Biragadi, and third is in Gurgaon. This is an institute where you will get all the industry relevant courses, or I would say the new age career courses, like IT courses. You will get all the IT courses like web development, right? Python, Java, .NET, and all the BFSI courses like banking and finance, right? Tally and finance and accounts, and you will get digital marketing, graphic designing and animation, IELTS, TOEFL, right? Hardware networking. So it is an institute which provide new age career courses to the students, right? And to the students, job seekers, working professionals, as well as we have working professionals and business owners as well for digital marketing, you can understand, right? And yeah, our main aim is to actually bridging the skill gap between the industry and the student or the candidate, right? Because in college, or what we can see in most of the scenario, we get only the theoretical knowledge, right? So to bridge that gap कि industry में काम कैसे होता है, ठीक है? Industry में और actually जो company है उसको requirement क्या है? उसको रिक्वायरमेंट है एज अ डिजिटल मार्केट, अगर आप जाते हो तो उसको रिक्वायरमेंट है क्या क्या टूल्स आपको आने चाहिए, क्या क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए. तो वही जो स्किल गैप आता है स्टूडेंट्स या जो भी जॉब सीकर्स हैं उनके बीच में, वो गैप फिल करना मीन्स टू प्रोवाइड द लाइव इंटरैक्टिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. ठीक है, दिस इज अवर मेन मिशन और अवर गोल in CQS. Right? So moving ahead, okay, so this webinar is for digital marketing. So let me just ask you a question. What do you understand by digital marketing? That's a common question, very simple question. Anyone can answer me what we cover in digital marketing or what we do in digital marketing? Anyone? We have 37 participants. Great. So anyone can answer me what is digital marketing? Come on, no one. I know you know the answer. Okay, no issues. I think you are hesitating to giving me the answer. So let me explain you what is digital marketing. See guys, देखो marketing तो है, ठीक है? Marketing अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूँ या ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करूँ, वी यूज द मेथड्स लाइक न्यूज़पेपर और रेडियो, right? And door-to-door activities, billboards, hoardings, right? We use that kind of stuff to do the marketing of our product services. लेकिन अगर आप देखो तो पूरा डिजिटली कोविड के बाद से अगर आप देखोगे तो और ज्यादा इसमें बूम पे है. डिजिटल जो मेथड्स हैं उनके थ्रू मार्केटिंग होने लगती है, राइट? एंड इट इज ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव. देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स डूइंग डिजिटल मार्केटिंग डिजिटली. So what digital marketing is? यहाँ पे आप देखोगे digital marketing is when we do the promotion of our services, our goods, right, or and of our products over the internet using digital media channels. Okay, or I would say digital channels. When we use digital channels to promote ourselves, our product, services, that is the digital marketing. Okay. And
हमारे जो डिजिटल चैनल्स हैं, व्हाट वी कैन कवर इन डिजिटल चैनल्स, ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग हम किसके थ्रू करते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, राइट? इधर इट्स अवर इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, यू हैव सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और बाय सर्च इंजन्स। और सर्च इंजन्स क्या होते हैं? सर्च इंजन्स होते हैं एनी प्लेटफॉर्म ऑन विच वी गो और एनी यूजर गो एंड सर्च देयर क्वेरी। ओके, तो जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं सर्च इंजन्स पे जाके, जैसे गूगल को हम लेते हैं, गूगल पे गए हमने जाके अपनी क्वेरी जो भी है, कीवर्ड जो भी है हमारा, वो टाइप किया एंड वी गेट सम रिजल्ट्स ओवर देयर। ओके, तो जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो किस बेसिस पे मिलते हैं, इसी के बारे में आज हमारा पूरा वेबिनार रहेगा। SEO, दैट इज द पॉइंट। बट मैं थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल चैनल से मैं क्यों बता रही हूँ आपको, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया व्हाट आर द थिंग्स कवर्ड अंडर डिजिटल चैनल्स। ओके, सो we will cover mobile application. Okay, so digital channels में आपका क्या हो गया? मोबाइल एप्लीकेशंस है, आपका वेबसाइट हो गया, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। Okay, right. So we will see what are the different digital channels that we will cover in digital marketing. But the main concept here is covering the SEO. ठीक है, तो आप समझ गए डिजिटल मार्केटिंग क्या है। जब भी हम अपना कोई भी प्रोडक्ट सर्विस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रमोट करते हैं, सो दैट वी कैन रीच टू द टारगेट ऑडियंस। ओके, दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? नाउ we are coming to the main point, that is SEO, search engine optimization. Then SEO is one part of digital marketing that we are going to cover in this webinar. ठीक है, अब SEO क्या है? थोड़ा सा आइडिया आपको पता होगा। SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मींस हमें अपनी वेबसाइट को या कोई भी हमारा कंटेंट है, ठीक है, लाइक वी राइट एनी ब्लॉग, तो उसको हमें SEO फ्रेंडली बनाना है। मींस उसको जो सर्च इंजन पे, जो भी सर्च इंजन पे हमें रैंक कराना है, मींस जिस भी सर्च इंजन की हम बात करें, वेदर इट्स गूगल, याहू, बिंग, कोई भी सर्च इंजन है, उसको जो उस सर्च इंजन के बॉट्स हैं और सर्च इंजन की जो एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग कंपैटिबल बनाना। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। मींस आपकी वेबसाइट या आपका कंटेंट कोई भी सर्च इंजन में रैंक करना चाहिए। मींस फर्स्ट पेज पे रैंक होना चाहिए, बिकॉज कोई भी सेकंड या थर्ड पेज पे सर्च नहीं करता, आपको पता है, राइट? सो हियर व्हाट वी नीड टू डू, गाइस, एम आई ऑडिबल? इज माय वॉइस क्लियर? Yes, ma'am. All right, great. Do let me know where my voice is lagging, because there is some network issue. But whenever you feel any problem, do let me know, right? So search engine क्या है? Let's see. अब मैं आपको example के through समझाती हूँ, because it is all practical. So when I'm going to Google, and this is our search engine, okay? If I type here, let me search for digital marketing agency. Okay, like if I'm looking for some digital marketing agency, and now I am getting some results over here. Okay, these are the results. So you can see these are the ads. Okay, AD आप देख रहे हो, यहाँ पे AD लिखा हुआ है, these are the ads. So these are not SEO results, because if we run ads through Google, then these results will come. But यहाँ पे आप जाओगे, ये जो रिजल्ट्स हैं, ये देखो मैप वाले जो रिजल्ट्स आपको दिखते हैं, मींस लोकल एरिया के जो रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे आप देखो ये जो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले, राइट? देयर इज नो एड रनिंग, AD नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, देखो दीज आर द रिजल्ट्स। पीपल ऑल्सो आस्क फीचर, राइट? दीज आर द रिजल्ट्स। ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके SEO की वजह से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मींस इन लोगों ने अपनी वेबसाइट को इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है गूगल की एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग, इसी की वजह से इनका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो रिजल्ट्स हमें दिख रहा है, अब आप समझ गए कि SEO क्या है। मींस अपनी वेबसाइट या अपना कंटेंट उसको ऑप्टिमाइज करना, सर्च बेसिकली गूगल एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग या कोई भी सर्च इंजन की एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, एंड उनकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करना। ऑब्वियसली जब फर्स्ट पेज पे आपका कंटेंट दिखेगा, आपकी वेबसाइट दिखेगी, everyone will click on that, you will get more traffic and you will get the more authority, and obviously if you get the more traffic, you will generate more business. Okay,
क्योंकि वेबसाइट आप बनाओगे और वेबसाइट बनाने के बाद वो रैंक ही नहीं करेगी किसी सर्च इंजन में, सो देयर इज नो यूज ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट, क्योंकि किसी को आपकी वेबसाइट का हो सकता है नाम नहीं पता, यूआरएल नहीं पता या डोमेन नेम नहीं पता। देन यहाँ पे क्या करेगा यूजर, तो अपनी क्वेरी करेगा ना, कीवर्ड से सर्च करेगा, तो वो कीवर्ड्स जो हैं उनके बेसिस पे आप कैसे रैंकिंग कराओगे अपनी वेबसाइट कंटेंट को, वही हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, फाइन। सो लेट्स सी, ये हमारे एसईओ के रिजल्ट्स हैं, ये आपको समझ आ गया, और ये हमारे होते हैं एड्स, जो भी हम एड रन करते हैं वो रिजल्ट्स हमारे यहाँ पे होते हैं। फाइन, कमिंग बैक टू द पॉइंट, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ। ठीक है, क्योंकि ये एसईओ जो रैंक कर रही है वेबसाइट आपकी, इट इज नॉट लाइक कि ये सिर्फ ऑन पेज एसईओ करने से रैंक कर रही है, नो, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसईओ जो हमें परफॉर्म यहाँ पे करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज ऑन पेज एसईओ, second is your off page SEO, third is your technical, and fourth is your local SEO. okay, so अब ये क्या है, इनके अंदर हम क्या चीजें करते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो ऑन पेज SEO गाइस होता है आपका, आप ऐसे इसको ले सकते हो, इट इज अ फ्रंट एंड दैट यूजर सी ऑफ योर वेबसाइट। जैसे आपने अपनी वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, मींस जैसे कोई वेबसाइट है, एक वेबसाइट ओपन करते हैं यहाँ से, या फिर let me give you the example of my website, and I have just started it, just for students practice guys, so it is not completed yet, but I can give you the example of this one. Okay, so you can see this is the website, or you can take the example of any website, like if I open this one. Okay, so this is the front end that users see of your website, like your content, right? What are the pictures that you put on this? If you put any images, any video, any other thing. So this is the thing that users see. Okay, so this comes under on page. So you need to take care कि on page में आपको क्या क्या factors हैं, या फिर मैं बोलूँ क्या क्या checklist points हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे this is the website, तो आप देख रहे हो ये as a user मैं इस website पे आई, and I can see the results over here. जो भी मेरा इसका स्ट्रक्चर है, जो भी लेआउट है, वो मुझे दिख रहा है ऑन पेज। ठीक है, एंड इन ऑन पेज एसईओ व्हाट यू डू, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, इस वेबसाइट पे, सो मैंने क्लिक किस पे किया, दिस इज द टाइटल। ओके, दिस इज द टाइटल ऑफ द वेबसाइट, सॉरी इस पर्टिकुलर पेज का, क्योंकि आपकी वेबसाइट में क्या होगा, यू कैन हैव मल्टीपल वेब पेजेस इन वन वेबसाइट। अग्री? अब आपको क्या करना है, आपके हर एक पेज में हो सकता है अलग अलग कंटेंट हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में आपने मेंशन करके रखा हो, सर्विसेज के बारे में मेंशन करके रखा हो, तो आप एक ही कीवर्ड्स पे अपने सारे पेजेस को रैंक नहीं करा सकते, राइट? यू नीड डिफरेंट कीवर्ड्स फॉर डिफरेंट वेब पेजेस। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एसईओ आपको जितने भी आपके वेब पेजेस हैं उन सबका अलग अलग करना है एसईओ। ठीक है, अब इन्होंने इस पेज का, मींस इनका ये होम पेज ही है, मेन पेज, उसका उन्होंने एसईओ किया। ठीक है, सो दे डिड द एसईओ ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, और ये पेज में क्या दिया एसईओ में इन्होंने, टाइटल, हियर इट इज द टाइटल, इट इज द मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कई बार जैसे आप कोडिंग लैंग्वेज में अगर आप देखोगे, अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाते हो तो सिंपल आप टाइटल दे दो, मेटा डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो, बट व्हेन यू क्रिएट वेबसाइट थ्रू कोडिंग लाइक एचटीएमएल वगैरह यूज करके आप बना रहे हो, तो उस केस में कई बार टाइटल टैग भी बोलते हैं। ठीक है, टाइटल टैग या फिर मेटा टैग्स भी बोलते हैं। फाइन, टाइटल टैग एंड मेटा टैग्स भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, सो लेट मी शो यू प्रैक्टिकली हाउ यू विल डू ऑन पेज एसईओ। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑन पेज की बात कर रहे हैं, जैसे टाइटल की, मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप देखते हो दिस इज द यूआरएल। ठीक है, स्लग भी इसको बोलते हैं, इसको हम गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑन पेज एसईओ। नाउ हाउ यू विल डू द ऑन पेज एसईओ। ठीक है, तो मैं वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगी, वर्डप्रेस, ब्लॉगर या विक्स, सब में एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा आपका, वही आप कर सकते हो फॉलो। एंड अगर आप कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बना रहे हो तो आई विल ऑल्सो हेल्प यू आउट कि कोडिंग के कहाँ कौन से वाले रूट डायरेक्टरी और पार्ट में जाके आपको वो कोड लगाना पड़ता है और कहाँ पे कौन सा कोड लगाना पड़ता है। ठीक है, सो यू विल गेट एन आइडिया। ठीक है, सो लेट मी जस्ट लॉग इन टू माई एडमिन पैनल ऑफ दिस वेबसाइट। ठीक है, इफ यू हैव यूज्ड वर्डप्रेस देन यू कैन रिलेट इट कि वर्डप्रेस में हमारे ज्यादातर काम किससे होते हैं, प्लगइन्स के थ्रू। ओके, सो गिव मी अ मोमेंट प्लीज, let's just log in.
क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको अगर मैं ऐसे ही थ्योरेटिकल बताऊंगी तो यू विल नॉट गेट एनी आइडिया व्हाट इज एसईओ. सो लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट द प्रैक्टिकल थिंग्स. ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल प्रैक्टिकल, कुछ भी थ्योरी नहीं है. अब देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे शो करूँ ऑल पेजेस, दैट यू कैन सी आई हैव मल्टीपल पेजेस इन दिस वेबसाइट. ओके, तो यहाँ पे देख लो आप, बहुत सारे पेजेस हैं. लेट मी शो यू वन पेज जिसका मैंने एसईओ कर रखा है ऑलरेडी. यू विल गेट एन आइडिया, क्योंकि हम एसईओ करने बैठेंगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. आई जस्ट वांट टू सी कि हाँ ऐसे हम एसईओ करते हैं, ये चीजें होती है. ठीक है, और प्लगइन आप कौन सा यूज करोगे, मेक श्योर जब भी आप एसईओ करोगे वर्डप्रेस में, उससे पहले आपको प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज योस्ट एसईओ. ठीक है, तो आप यहाँ प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू करके योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो. ऑल्दो वी हैव मल्टीपल प्लगइन्स, जैसे हमारा एक ऑल इन वन एसईओ है, ऑल इन वन एसईओ प्लगइन है, राइट. वी हैव रैंक मैथ ऑल्सो, बट योस्ट एसईओ इज अ वेरी गुड प्लगइन. यहाँ पे आप देख रहे हो ना, दिस वन, दिस इज द योस्ट एसईओ प्लगइन. सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट. आप यहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है, सो गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट ओपन दिस पेज. Right, so from here, if I want to do the SEO of this page, because I have already told you that you need to do the SEO of every page, okay, every web page that you have in your website, because you will be doing the SEO for multiple keywords, right. So here it is, when you install the Yoast SEO plugin, you can see the option over here, and whatever I have told you, that you need to give the title. Okay, see, this is the SEO title. So you need to give the title over here. Slug is this one. Slug means the part that we see after the domain name. तो यहाँ पे जैसे इनका अगर आप slug देखो, see यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये इनका domain name है, but after that you can see the slug, or we can also call it as permalink. ठीक है, permalink. तो what we need to focus on in on-page SEO, we need to focus on title, slug, and meta description, that is what our users see for our website on search engines, right. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल देंगे, slug देंगे, and meta description देंगे. Fine. So this is how we can do the on-page SEO for our website. अब आप एनालिसिस कैसे करोगे whether it's perfect or not? यहाँ से देखो, इसी के नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है, you can do the SEO analysis. And what are the different factors or the checklist that you need to check for on-page SEO? देखो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आ जाती हैं. What are the good results that you have? What are the improvements that you need to take care of, right? And what are the problems actually in your website? तो मैं जल्दी से एक बार explain करती हूँ आपको क्या है ये, right? So if you see this one, ठीक है, आउटबाउंड लिंक्स, तो आप समझ रहे हो आउटबाउंड लिंक्स का मतलब मीन्स जिस पेज का आप एसईओ कर रहे हो उस पेज में आपके आउटबाउंड लिंक्स होने चाहिए. मीन्स इट कैन बी सम अदर वेबसाइट और इट कैन बी योर सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्स. ओके, तो आपको क्या करना है, अपना एसईओ अच्छे से करने के लिए वेबसाइट का आपको ऑन पेज एसईओ की भी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए आउटबाउंड लिंक्स देने हैं. ठीक है, एंड देन इमेजेस, आपको इमेजेस वहां पे लगानी है. इंटरनल लिंकिंग करनी है, मीन्स आपके जो पेजेस हैं वो आपस में, वेबसाइट के जो डिफरेंट पेजेस हैं वो आपस में इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए उसमें. ठीक है, की फ्रेज लेंथ मीन्स आपका जो की फ्रेज है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, दैट इज फोकस की फ्रेज. यू नीड टू गिव द फोकस की फ्रेज ओवर हियर, मीन्स द मेन प्राइमरी कीवर्ड that you want to keep for that particular page. So I have given best digital marketing trainer. So this is my focus key phrase. Fine. तो यहाँ पे focus key phrase की जो length है, means phrase की बात कर रहे हैं. So what we need to do? We need to include more than 2 words over there. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 words हैं, इसका मतलब length अच्छी है focus key phrase की हमारी. तो यहाँ पे this is coming in good results. Okay. अब की फ्रेज को हमको क्या करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी देना है. की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन. तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने की फ्रेज को क्या किया है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर. ओके, सो एंड यू नीड मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ. अब देखो यहाँ पे जो लेंथ होती है आपकी, दिस इज द लेंथ, यू कैन सी इट इज कमिंग इन ग्रीन. इफ आई इंक्लूड मोर वर्ड्स ओवर हियर, मोर कैरेक्टर्स ओवर हियर, तो आप देखोगे ये रेड में हो जाएगा. इसका मतलब टाइटल के और डिस्क्रिप्शन की भी एक लेंथ होती है दैट यू नीड टू फॉलो,
राइट। तो टाइटल की आपकी क्या लेंथ होती है? टाइटल की होती है आपकी 60 to 70 कैरेक्टर लिमिट है। अगर इससे ज्यादा करोगे तो इट विल गो इन रेड। ओके, दैट विल ऑब्वियसली इफेक्ट योर SEO, ऑन पेज SEO। आपकी वेबसाइट रैंक होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं आपके लिए। जो SEO एनालिसिस ये फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर द मेन रीजंस कि आपकी वेबसाइट कई बार क्या होगा, आपने बहुत अच्छा कंटेंट दिया, आपने बहुत अच्छी इमेजेस वहां पे लगाई, फिर भी आपकी वेबसाइट को 4 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए, नहीं रैंक कर रही है। ओके, सो ये आपको फोकस करना है कि आपको यहाँ पे जो आपका टाइटल है विद इन द लेंथ देना है 60 to 70 कैरेक्टर्स। एंड मेटा डिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए? मेटा डिस्क्रिप्शन आपका होना चाहिए बिटवीन 155 to 160 कैरेक्टर्स। 160 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो क्या होगा, एक तो SEO को इफेक्ट करेगा, और दूसरा फिर आपका जो टाइटल है उसके बाद आप देखोगे डॉट 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 करके दिखाने लगेगा, ठीक है, गूगल में या कोई भी सर्च इंजन जिसके लिए आप कर। तो ऑब्वियसली गूगल के बॉट्स जो होंगे, जो बैकएंड में काम हो रहा है, जो सर्च इंजन्स के पास इंडिकेशन जा रही है, उनके पास क्या होगा, एक जो पॉजिटिव इंडिकेशन है वो नहीं जाएगी कि आपकी वेबसाइट को रैंक कराए, ठीक है, क्योंकि वो जो डॉट 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 है वो वर्ड टेक्स्ट पढ़ नहीं पाएगा गूगल के बॉट्स आपके, इफ यू आर स्टार्टिंग योर वेबसाइट और आपकी वेबसाइट नई है तो, ठीक है। एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा और एक बार आपकी वेबसाइट जब बहुत सारे कीवर्ड्स पर रैंक करने लगेगी, देन यस यू कैन श्योरली डू इट, ठीक है। मैं भी बताऊंगी कीवर्ड्स भी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन कौन से टूल्स हैं, एक दो टूल मैं आपको बता दूंगी, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि मैम कीवर्ड्स कहाँ से निकालें, और कीवर्ड्स कितने कंपटीशन क्या चल रहा है अभी, कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम क्या चल रहा है, दैट यू कैन एवरीथिंग गेट इट, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज दोगे, एंड देन यू कैन सी टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ इज द कंटेंट इन योर पेज। तो आपके मिनिमम 300 वर्ड्स तो होने ही चाहिए, मतलब जो पर्टिकुलर पेज है, जैसे कि लेट मी शो यू, जैसे जिस पेज का आप SEO कर रहे हो उस पेज का एटलीस्ट मिनिमम यू शुड हैव 300 वर्ड्स, ठीक है। तो हमारे 300 वर्ड्स से ज्यादा हैं, दैट इज गुड। अगर कम होते तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में या फिर इम्प्रूवमेंट्स में ये रिजल्ट हमें दिखाता। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट कि हाँ हमें इस पे काम करना है, ठीक है। की फ्रेज हमारा टाइटल में भी है, देखो यहाँ पे we have used the key phrase in title because key phrase plays a very important role in your page SEO। यहाँ पे आपको make sure आपका प्राइमरी कीवर्ड डालना है, क्योंकि एक पेज होगा, देखो एक पेज जरूरी नहीं सिर्फ एक ही कीवर्ड पे, आप उसमें 10 यू कैन टेक अप टू 10 कीवर्ड्स के उस पे आप रैंक करा सकते हो, ठीक है। एक पेज कई कीवर्ड्स के लिए रैंक कर सकता है, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर है, इफ आई वांट आई कैन आल्सो रैंक इट ऑन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन दिल्ली, राइट, या फिर डिजिटल मार्केटिंग freelancer, whatever it is. So I need to check अब फोकस की फ्रेज, प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पे देना है। बाकी के कीवर्ड्स आप कहाँ डालोगे? बाकी के कीवर्ड्स आपके रहेंगे आपके जैसे हेडिंग, जैसे मान लो ये हेडिंग है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या दे रखी है, अगर कोई लिखता भी है मान लो बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट इन दिल्ली NCR, ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ये इस कीवर्ड के लिए भी हो सकता है मेरी वेबसाइट रैंक करे, ठीक है, बिकॉज बट इट इज अ न्यू वेबसाइट, आई हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग। एक्चुअली स्टूडेंट्स ही प्रैक्टिस करते हैं तो यू वॉन्ट सी मोर डिटेल इन इट, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल, ओके। सो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे अपना कीवर्ड जो भी है मेरे कीवर्ड्स वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आई कैन ऑल्सो मेंशन द कीवर्ड्स ओवर हियर, सो यू कैन मेंशन द कीवर्ड्स इन योर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, फाइन। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ऑन पेज SEO के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो इमेज की फ्रेज, इमेज का मतलब आप जो इमेज ऐड कर रहे हो, मतलब जो इमेजेस आपने लगाई हैं उन इमेजेस पे की फ्रेज आपको देने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस है बट आई हैव नॉट पुट एनी की फ्रेज, दैट्स व्हाई ये मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स के लिए एक ऑप्शन दिया है कि यू कैन पुट द की फ्रेज इन वन ऑफ योर और टू ऑफ योर इमेजेस, ठीक है। सब हेडिंग में आपको की फ्रेज देना है, मेक श्योर जो की फ्रेज आपने यहाँ चूज किया यू नीड टू गिव इट इन सब हेडिंग, ठीक है। यू कैन रिलेट इट मोर, अगर आपने वेबसाइट बनाई होगी मे बी थ्रू कोडिंग और वर्डप्रेस पे या ब्लॉगर पे बनाई होगी या विक्स पे भी ट्राई की होगी तो यू कैन रिलेट इट, बट जब भी आप बनाओगे आपको एक क्लिक हो जाएगा कि मैम ने हमें बताया था कि हमें वेबसाइट तो बना ली लेकिन उसको रैंक भी कराना है, ठीक है। तो रैंकिंग के ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, लेट मी शो यू, जो ऑन पेज में आती हैं, ठीक है। तो ऑन पेज आप समझ गए, मतलब जो फ्रंट एंड यूजर को दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग
फ्रंट एंड यूजर को क्या दिख रहा है, तो हमारी वेबसाइट पे जाएगा कोई, ठीक है, या फिर सर्च इंजन पे वेबसाइट रैंक करेगी तो उसको टाइटल दिखेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन दिखेगा, स्लग दिखेगा, तो उस पर हमने काम कर लिया, ठीक है। वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो हम प्लगइन का यूज करेंगे, वर्डप्रेस पे वेबसाइट नहीं है तो देखो क्या होता है, कोडिंग के थ्रू भी मैं दिखाती हूँ। जैसे ये सपोज मेरी वेबसाइट है एंड व्हाट आई डिड, आई हैव जस्ट डिड दैट, ठीक है, कंट्रोल यू, इसके पेज सोर्स जो है कोड का वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सी दिस इज द कोड ऑफ दिस वेबसाइट, आई मीन जस्ट द कोड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इफ यू सर्च फॉर दिस वन एंड सर्च फॉर मेटा नेम, okay, when you search for meta name you can see guys what happened, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, do let me know अभी कितने टाइम से आप मुझे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, मैम कनेक्टेड था ना, ओके ओके, आई थॉट के दोबारा से कनेक्ट कहीं मैं अपने आप से तो नहीं भूले जा रही हूँ, ओके दैट्स गुड, परफेक्ट, राइट। सो यहाँ पे देखो आप मेटा नेम, ठीक है, जब भी कोडिंग की वेबसाइट होगी तो व्हाट यू नीड टू डू, यू आर द एसईओ एक्सपर्ट, मे बी हो जाओगे आप अगर सीख रहे हो, ठीक है। तो एसईओ एक्सपर्ट से कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप वेबसाइट में जाके इस कोड को लगाओ, आपको क्या करना है, आपको बता And देना, the screen is not visible. ओके ओके, गिव मी अ मोमेंट, alright, I think I need to share it again. Is that okay now? Give me a moment. I think it is connecting. Give me a moment, guys. I think. Is it visible now for everyone? Yes, ma'am, it's visible now. Okay, Visible now. okay, perfect. Right. So here you can see when I type over here meta name, and you can see the title given over here, right? So that is the same title that we gave through Yoast SEO plugin in WordPress. Okay, so you can see the best digital marketing trainer. This is the same title. And if I talk about the description, it is the same description. See. So what you need to do, अगर आपका जो वेब डेवलपर्स हैं वो आपकी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और यू नीड टू गिव द कीवर्ड्स आल्सो, क्योंकि जो कोडिंग की वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली उसमें हमें कीवर्ड्स भी देने पड़ते हैं, बट हमारा वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होगी उसमें हमें कीवर्ड्स देने की कोई जरूरत नहीं है, वी नीड टू पुट द कीवर्ड्स इन द कंटेंट ओनली, ठीक है, पेज पे जो हम डालते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोडिंग की वेबसाइट होती तो आपको कीवर्ड्स भी देने पड़ते, व्हाट आर योर कीवर्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर पेज। तो आपको सिर्फ ये कहना है कि मेटा नेम के अंदर, ठीक है, मेटा नेम के अंदर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स देना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये मेटा डिस्क्रिप्शन में टाइटल, कीवर्ड्स एंड सॉरी टाइटल एंड हमारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो वेब डेवलपर है उनके पास फुली एक्सेस होता है, जो भी कोडिंग फाइल्स होती हैं वहाँ पे, तो फाइल मैनेजर में जाके जो भी उनका पब्लिक HTML फोल्डर या जो भी उन्होंने बना के रखा होगा वहाँ पे जाके इस कोड को उस पर्टिकुलर पेज के कोड में ये इंटीग्रेट कराना है आपको, क्योंकि हर एक पेज अलग अलग कीवर्ड्स के लिए आप रैंक कराओगे, ठीक है। एक सेम पेज आपके ऐसा नहीं है कि पूरी वेबसाइट एक ही बस आपने एक पेज उसका रैंक कराना है, नहीं, यू नीड टू रैंक एवरी पेज अगर आपका वो प्रोडक्ट सर्विस आपका है, ठीक है। अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस वाला पेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उसको आप रैंक कराओगे किसी के लिए, बट यस योर होम पेज, any services, products, anything, consultancy, whatever you have, right, that you need to focus on. ठीक है, तो कोडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना के सिंपल जो आपका है वो आप दे सकते हो और कोडर को बोल सकते हो कि मेटा नेम के अंदर जाके वो पेस्ट कर दे इसको, ठीक है, कोडिंग में।
right? So you need to focus on that. And what are the different checklists you can see? ठीक है, तो देखो कीवर्ड्स ऑन पेज में सबसे ज्यादा जो काम होता है वो होता है हमारा कीवर्ड्स का, क्योंकि हमें पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा पेज हमें कौन से कीवर्ड्स के लिए रैंक कराना है. अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ओके व्हाट आर द डिफरेंट कीवर्ड्स, व्हाट आर द कंपटीशन, व्हाट इज द कंपटीशन इन कीवर्ड्स, व्हाट इज द सर्च वॉल्यूम गोइंग ऑन फॉर दिस कीवर्ड. ठीक है, क्योंकि एसईओ आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. ठीक है, अगर आप सोचो कि आपने आज एसईओ किया वेबसाइट का, वो 1 महीने बाद रैंक करेगा, 2 महीने बाद, नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. यू नीड टू हैव सम पेशेंस ओवर देयर, क्योंकि ये कीवर्ड्स का कंपटीशन पे डिपेंड करता है. अगर उस कीवर्ड का कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है, जिसका एसईओ डिफिकल्टी आपका इवन 50 से ज्यादा है, तो वहां पे आपकी वेबसाइट को हो सकता है 6 मंथ्स भी लग जाए रैंक करने के लिए. ठीक है, दैट्स व्हाई हम शुरू में क्या करते हैं, वी आर स्टार्टिंग अवर वेबसाइट, तो वहां पे हम ब्लॉगिंग पे फोकस ज्यादा करते हैं, सो दैट वी कैन टेक द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, मींस जो क्वेश्चंस वाले होते हैं, जो लॉन्ग टेल फ्रेज वाले कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि उनका जो एसईओ डिफिकल्टी होता है कम होता है. इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार. लेट मी जस्ट क्लोज दैट वन. ठीक है, अब देखो मैंने जैसे ये कीवर्ड यहाँ पे दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वी आर गेटिंग सम मंथली सर्चेस ओवर हियर. ठीक है, लेट मी जस्ट स्विच टू इंडिया. ओके, मैं कौन से टूल्स यूज कर रही हूँ मैं ये भी आपको बता देती हूँ, सो दैट यू कैन ट्राई फ्रॉम योर एंड. ठीक है, सो दिस इज उबर सजेस्ट. ठीक है, उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन है. इफ यू गो टू गूगल and type over here Uber suggest Chrome extension, so this is the best tool, best free tool actually for keyword research. Although we can do multiple things from this tool, but keyword research के लिए काफी अच्छा tool है ये आपका. तो आप Uber suggest देखोगे तो you can add it to your Chrome. Okay, I have already added it. तो आपको देखो यहाँ पे you जो icon आप देख रहे हो एक बार जो एड्रेस बार है वहां पे साइड में, you will get the icon over here Uber suggest. And second tool you can use keyword everywhere. This is also a good tool. Okay, so you can use the Chrome extension of this also, keyword everywhere. Okay, keyword everywhere. So these are the free extensions that you can use, although we have multiple tools like SEMrush is there, RFs is there, and Google Keyword Planner is there. Okay, Word AI is there. We have so many tools through which we can do the keyword research. But अभी हम ये दो tools लेते हैं, Uber Suggest and Keyword Everywhere. Now I have searched for digital marketing agency. Okay, we can see in India we are getting 22,200 monthly searches. Okay, monthly search मतलब इसका अच्छा खासा search volume है. We can see search volume. CPC is actually related to the Google Ads, तो इसको भी हम discuss नहीं करेंगे. When we coming to the point over here, आप देखो digital marketing agency volume, monthly searches आपको पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड का कितना search volume है. And you can see the SEO difficulty over here. Okay, so it is 43. इसका मतलब हम easily rank करा सकते हैं अपनी वेबसाइट को. अगर हम इस particular keyword को अगर primary keyword भी लेके चले, तो yes we can rank on this 43. क्योंकि अगर आपका keyword difficulty 50 से कम है, you can easily rank on this on that particular keyword. ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आऊँ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन टेल, ये देखो. ठीक है, यहाँ पे इस कीवर्ड पे आऊँ तो दिस इज लॉन्ग टेल कीवर्ड. ओके, एंड सर्च वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होंगी क्योंकि लॉन्ग टेल है, इतना लेंथी कोई भी नहीं लिखता. शुरू में वो लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कोई भी कीवर्ड उनका शॉर्ट कीवर्ड देन लॉन्ग टेल कीवर्ड. तो आप देखो कि यहाँ पे 34 इसका एसईओ डिफिकल्टी मींस आपके लिए बहुत इजी रहेगा इसको रैंक कराना. So what you can do, you can rank yourself first on digital marketing agency in Delhi. You can also see the relevant keywords that you can include in that particular page. आपको primary keyword तो एक हो गया, उसके अलावा आपको और भी तो relevant LSI, latent semantic indexing keywords चाहिए, means synonyms हो गए, right. Let me again share my screen. It got disconnected. Give me a moment.
Okay. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay, right. Give me a moment. Let me just share my screen. Okay, right. So when we search for it, you can see यहाँ पे हमें multiple results मिल जाते हैं and actually internet is creating problem today. It is very slow, huh? That's why please bear with me. I can understand it's sometimes frustrating, huh? But I'm so sorry for that. Okay, right. So you can see the multiple results over here of long tail keywords. So you can take the idea from here. ठीक है, सो आपको आइडिया यहाँ से लग रहा होगा दिस इज कीवर्ड एवरीवेयर के रिजल्ट्स हैं आपके, तो आप यहाँ से कीवर्ड्स ले सकते हो. एंड इन उबर सजेस्ट यू कैन ऑल्सो सी कि जो भी क्वेश्चंस, लोग किस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली कर रहे हैं, सजेशंस किस तरह के कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कीवर्ड्स का. ठीक है, सो यू कैन इंक्लूड दोज कीवर्ड्स इन योर पर्टिकुलर पेज. ठीक है, वेब पेजेस में. तो ये आपका ऑन पेज, अगर ओवरऑल दोबारा से मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ पूरा ऑन पेज, तो इसमें आपको कीवर्ड्स का यू नीड टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स. ठीक है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है वो मैंने आपको बताया. आई हैव टोल्ड यू टू बेसिकली क्रोम एक्सटेंशन, उबर सजेस्ट एंड कीवर्ड एवरीवेयर. ठीक है, देन यूनिक कंटेंट आपका होना चाहिए. मेक श्योर नो प्लैगरिज्म. ठीक है, मीन्स नो प्लैगरिज्म, 100% यूनिक कंटेंट. या तो आप खुद लिख सकते हो कंटेंट एंड यू कैन राइट द कंटेंट. अदरवाइज वी हैव सो मेनी टूल्स जिनके थ्रू आप कंटेंट राइट कर सकते हो. देयर आर सो मेनी टूल्स इन मार्केट. कंटेंट को आप रीराइट कर सकते हो. लाइक इफ यू आर रीडिंग समवन एल्स ब्लॉग एंड यू फाइंड कि हाँ ये ब्लॉग अच्छा है, इसका कंटेंट अच्छा, यू वांट टू यूज the same thing in your same strategy or same thing in your content, तो आप उसमें क्या करोगे, उन कंटेंट को चेंज करोगे पहले. ठीक है, रीराइट करने के बाद प्लैगरिज्म चेक करोगे. तो बहुत सारी टूल्स अगर आप देखो, आर्टिकल फॉर्ज है, ठीक है, वर्ड एआई है, आर्टिकल बिल्डर है, तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम यूनिक कंटेंट लिखेंगे. तो यूनिक कंटेंट बहुत मैटर करता है. आपका कंटेंट यूनिक नहीं रहा तो ऑब्वियसली जो सर्च बेसिकली सर्च इंजन्स हैं उनके बॉट्स आपके जो कंटेंट है उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे एंड इट विल नॉट रैंक योर वेबसाइट. ठीक है, टाइटल टैग जो मैंने बात करी, टाइटल पे ध्यान देना है. मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑल्ट एट्रीब्यूट. व्हाट इज दिस ऑल्ट एट्रीब्यूट? इमेज का नेम देना. ठीक है, तो मेक श्योर जो भी आप इमेज लगा रहे हो अपने पर्टिकुलर वेबसाइट में, वहां पे आपको उस इमेज को नेम देना है. दैट इज ऑल्ट एट्रीब्यूट. ऑल्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं कई बार. ठीक है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होना चाहिए. जो हमने स्लग की बात की थी, स्लग की बात हमने क्या की थी कि यहाँ पे जो हम यूआरएल दे रहे हैं, ठीक है, सो इट शुड बी एसईओ फ्रेंडली. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे साफ समझ आ रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर. अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडम सी आईडी दे देती, कुछ रैंडम सा वर्ड्स दे देती, ऑब्वियसली ये हमारा एक एसईओ फ्रेंडली नहीं होता. तो वहाँ पे हमें जो यूआरएल देना है, जो मीन्स डोमेन नेम के बाद का यूआरएल है, वो हमें यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली देना है. इट विल ग्रेट इम्पैक्ट फॉर योर रैंकिंग ऑफ योर वेबसाइट. ठीक है, इंटरनल लिंकिंग करनी है. जैसे हमने बात की, हमारे जो डिफरेंट पेजेस हैं उनको इंटरनली हमें कनेक्ट करना है. आउटबाउंड लिंकिंग देनी है क्योंकि आउटबाउंड लिंक्स बहुत मैटर करते हैं. आपने देखा कि ये एसईओ एनालिसिस में, ऑन पेज एसईओ एनालिसिस में आउटबाउंड लिंक्स हमारे इफेक्ट करते हैं. ठीक है, सो वी नीड टू गिव अवर सोशल मीडिया profiles link, pages links, or if we have any other platform or website, we can also give the link over there. फाइन. फोकस की फ्रेज की हमने बात की. एंड टेक्स्ट लाइन मींस जो भी कंटेंट हम पर्टिकुलर पेज में डाल रहे हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन, मोर देन 300 वर्ड्स. फाइन. तो ये ऑन पेज है. ऑन पेज का मतलब दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं कि फ्रंट एंड जो यूजर को दिख रहा है मींस हमारी वेबसाइट, और हमारी वेबसाइट में जो टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, स्लग है, एंड दीज आर द चेकलिस्ट. ये मैंने I have mentioned few of them because अगर हम देखें तो SEO के 200 फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, कंटेंट की रैंकिंग के लिए. ठीक है, बट मेन जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो ये है आपके. ठीक है, सो यू कैन फोकस ऑन दीज थिंग्स. एंड ऑफ पेज, अब हमने ऑन पेज किया,
ऑफ पेज होता है हमारा, इट इज अ टाइप ऑफ एसईओ। सेकंड टाइप की मैं बात करूँ तो ऑन पेज के बाद हमें ऑफ पेज भी करना पड़ता है, क्योंकि ऑफ पेज क्या होता है, इट इज द बैक लिंकिंग। बैक लिंकिंग मीन्स अब आपकी वेबसाइट है बट यू आर नॉट गेटिंग एनी विजिटर्स और यू आर नॉट गेटिंग एनी ट्रैफिक, तो इज देयर एनी यूज ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, सर्च इंजन से ऑन पेज करेंगे, ठीक है, सर्च इंजन से हमारा ट्रैफिक आएगा, बट मे बी टाइम लग रहा है। हम चाहते हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो दूसरे ऐसे बेसिकली डोमेन अथॉरिटी जिसकी वेबसाइट्स की अच्छी हैं या डोमेन अथॉरिटी जिन प्लेटफॉर्म्स की अच्छी हैं, वहां से हमें ट्रैफिक चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, बैक लिंकिंग देनी पड़ेगी। मीन्स अपनी वेबसाइट का लिंक हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे या दूसरी वेबसाइट पे शेयर करते हैं, या तो हम शेयर कर सकते हैं या फिर जो वेबसाइट ओनर है उसको हम बोलें कि आप हमें बैक लिंक दो, ठीक है। दैट इज द ऑफ पेज एसईओ, क्योंकि जो उनकी वेबसाइट पे आएंगे वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, विजिटर्स आएंगे। तो इसके भी बहुत सारे फंडे होते हैं कि क्या किस किस तरीके से आप बैकलिंक कर सकते हो, तो देखेंगे अभी हम कुछ स्ट्रैटेजीज को। उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है, नो फॉलो, ठीक है, आपने कई बार सुना होगा। तो डू फॉलो का मतलब होता है जैसे कि इफ यू आर गिविंग एक्सेस टू समवन एल्स, या फिर आपको कोई अपनी आपकी वेबसाइट को बैकलिंक कर रहा है, ठीक है, मतलब अपनी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल वहां पे डाल रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर पेज का लिंक दे रहा है, तो वो आपको डू फॉलो बैक लिंक दे रहा है या नो फॉलो दे रहा है? डू फॉलो दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी वेबसाइट की कुछ अथॉरिटी आपको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। मींस उसकी वेबसाइट को जो गूगल के बॉट्स के माइंड में या सर्च इंजन के माइंड में जो इमेज बनी हुई है उस वेबसाइट की, उसकी कुछ परसेंट, 5%, 4% अथॉरिटी आपको ट्रांसफर कर रहा है, सो डेट गूगल के बॉट्स के माइंड में ये इंडिकेशन जाए कि यस योर वेबसाइट इज ऑल्सो अ गुड वेबसाइट, मतलब आपको रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, डू फॉलो में। नो फॉलो में क्या रहेगा, नो फॉलो अगर आपको बैकलिंक दे तो आपको बैकलिंक तो देगा, मींस अपनी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक तो मेंशन करेगा, बट वो नो फॉलो बना दिया उसने। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक तो आएगा वहां पर, उसकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स हैं वो अगर लिंक पे क्लिक करेंगे दे विल बी रिडायरेक्टेड टू योर वेबसाइट, बट वो क्या होगा, नो फॉलो, मतलब आपको अथॉरिटी नहीं पास कर रहा, आपको कोई भी वो ऐसा गूगल के बॉट्स में, गूगल के जो सर्च इंजन के जो बॉट्स है उनके इंडिकेशन ऐसा कुछ नहीं दे रहा कि आपकी वेबसाइट को रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, नो फॉलो। आपको क्या ट्राई करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि डू फॉलो बैकलिंक्स में, बट यहाँ पे पॉइंट आता है कि डू फॉलो बैकलिंक्स भी आपको जो जिस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी अच्छा होगा, ठीक है, उनसे ही देना, मीन्स इट शुड बी ग्रेटर देन 50। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लेट्स सी, इसको ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो वेबसाइट्स है, यू कैन सी ये जो वेबसाइट है इसका डोमेन अथॉरिटी अभी 14 है। अगर मैं इस वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बोलूंगी इनको मुझे देने के लिए, तो डू आई गेट गुड क्वालिटी ऑफ डोमेन अथॉरिटी? नहीं, क्योंकि 14 है इनका डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। हाँ, उसी जगह अगर मैं इस वेबसाइट के ओनर के पास जाऊंगी, उसको ईमेल करूंगी या किसी भी रीजन से कांटेक्ट करूंगी, या फिर मैं इनको गेस्ट पोस्ट इनके लिए लिखती हूँ, तो ऑब्वियसली इफ अगर मुझे ये डू फॉलो बैकलिंक देंगे तो आई विल गेट द मोर अथॉरिटी, ठीक है। तो डोमेन अथॉरिटी क्या है, ये एक पार्ट है आपका ऑफ पेज एसईओ का, जो आपके कितने बैकलिंक्स हैं, आपके बैकलिंक्स कौन कौन सी वेबसाइट से आप ले रहे हो, ट्रैफिक कौन सी अथॉरिटेटिव वेबसाइट से आपके पास आ रहा है, वहां पे आपका ये डोमेन अथॉरिटी स्कोर बनता है, ठीक है। तो मेक श्योर शुरू में आपका वो 50% से मतलब 50 स्कोर से ज्यादा होना चाहिए। एंड ये मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, ये वाले रिजल्ट्स ये मिल रहे हैं आपके मॉज, ठीक है। मॉज भी क्या हुआ है आपका, एक तरह से क्रोम एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो, तो देयर आर सर्टेन टूल्स, ठीक है, दैट वी यूज मॉजबार, ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन, इसको आप यूज कर लेना, यू विल गेट दीज एनालिसिस आल्सो, राइट। एंड व्हाट आर द डिफरेंट, अगर लिंक बनाना है डू फॉलो नो फॉलो, तो आप देखो सिंपल, किसी भी अगर आप लिंक को देखो तो उस लिंक का यूआरएल इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, AHREF जो भी लिंक है, एंड कौन से वर्ड पे हमने लिंक दिया, मींस एंकर टेक्स्ट हमने क्या बनाया। आई नो आई एम यूजिंग सो मच टेक्निकल वर्ड्स, बट दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स दैट आई नीड टू टेल यू, क्योंकि होते हैं ये टेक्निकल वर्ड्स, जब आप आओगे सीखोगे एसईओ देन यू विल गेट दीज वर्ड्स एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब जिस वर्ड पे हम लिंक दे रहे हैं दैट इज द एंकर टेक्स्ट, तो ये वर्ड मान लो इस पे मैंने कोई लिंक दिया तो ये यूआरएल हो गया। सो बाय डिफॉल्ट डू फॉलो बैकलिंक होता है, अगर आप उसको नो फॉलो बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये चीज इंक्लूड करनी है, ये सिंटेक्स REL मतलब रिलेशन, REL इज इक्वल टू नो फॉलो, इसको इंक्लूड करना है। इसका मतलब आप लिंक तो दे रहे हो लेकिन वो पर्टिकुलर लिंक क्या हो गया, नो फॉलो हो गया,
तो ये चीज आप धीरे धीरे सीखोगे, अभी सिर्फ मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ऑफ पेज एसईओ कैसे कर सकते हो, मतलब बैकलिंक कैसे बना सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू कर सकते हो। मींस आप किसी के लिए पोस्ट लिख सकते हो, ठीक है, बट गेस्ट पोस्टिंग में कई बार होगा, कई वेबसाइट्स आपको बोलेंगी पहले आप उनको एक पोस्ट लिख के दो, ठीक है, उनकी जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग, एंड दे विल अप्रूव दैट फर्स्ट एंड दे विल पोस्ट ऑन देयर पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आप गूगल पे जाओगे एंड व्हेन यू सर्च फॉर गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फ्री, आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट गेस्ट पोस्टिंग फॉर देम। ये देखो यू आर गेटिंग 1000+ साइट्स ओवर हियर, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग इनके लिए स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द ब्लॉग, एक्चुअली वेरी गुड ब्लॉग, इन्होंने काफी अच्छा ब्लॉग लिखा है इसमें। तो आप देखो ये सारी आपकी साइट्स हैं, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, इन पे जाके आपको देखना पड़ेगा दैट इनकी जो गाइडलाइंस हैं गेस्ट पोस्टिंग की वो क्या है, ठीक है। सो यू कैन सबमिट योर पोस्ट ओवर हियर एंड व्हेन समवन इज कमिंग टू देयर साइट दे कैन गो टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी एंड कैन कम टू योर वेबसाइट, और वहां पे आपको बैकलिंक मिल जाएगा, मतलब ट्रैफिक विजिटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। फॉरम सबमिशन क्या होता है, मींस द साइट्स ऑन विच यू कैन गो एंड सबमिट योर क्वेरी, क्वेश्चन आंसर वाली जो साइट्स होती है, जैसे कोरा इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। याहू आंसर्स आप देखो, कोरा, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म्स आप देखो, सबका फॉरम साइट्स होती हैं सबकी, ठीक है, जिसपे जाके लोग क्वेरी करके अपना क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो वो तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, आप जाओ वहाँ पे जो भी कोई क्वेश्चन है उसका आंसर करो, एंड फॉर यू कैन राइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यू कैन रीड मोर, है ना, रीड मोर पे क्या किया अपने बटन पे, सॉरी वहां पे जो वर्ड है उस वर्ड पे रीड मोर पे आपने लिंक लगा दिया अपनी वेबसाइट का या पर्टिकुलर उस ब्लॉग का या पोस्ट का, तो वहां पे आके पर्सन ज्यादा आइडिया वहां से ले सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कोरा का आपका, दैट यू कैन यूज फॉर ऑफ पेज एसईओ बैकलिंक। डायरेक्टरी सबमिशन मींस अपनी बिजनेस को अलग अलग डायरेक्टरीज में, अलग अलग जो बिजनेस लिस्टिंग साइट्स हैं वहां पे मेंशन करना, मतलब वहां पे लिस्ट करना, टाइटल देना, डिस्क्रिप्शन, ऑन पेज एसईओ की तरह ही होता है कहीं ना कहीं ये। तो डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, जैसे हम जस्ट डायल वगैरह पे करते हैं ना, जस्ट डायल, सुलेखा, अलग अलग साइट्स होती है हमारी, इंडिया मार्ट वगैरह, तो उसी तरह से होता है। तो आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, यू विल गेट लॉट्स ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक साइट है एसईओ खजाना, वो बहुत अच्छी साइट है, उस पे जाके आप डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हो, इवन यू कैन आल्सो डू द डायरेक्टरी सबमिशन। सी अब देखो ये सेम वेबसाइट ही आप देख रहे हो ना, एसईओ एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग, दे गाइस आर रैंकिंग फॉर दिस थिंग आल्सो, गेस्ट पोस्टिंग एंड दिस थिंग आल्सो, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये अलग अलग कीवर्ड्स पे इनके अलग अलग पेजेस क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं। सो यू कैन नाउ रियलाइज कि एक वेबसाइट आपको क्या करानी है, अलग अलग पेजेस अलग अलग कीवर्ड्स के लिए रैंक करानी है, ठीक है। सिर्फ एक पेज पे थोड़ा रैंक कराओगे आप, गेट माय पॉइंट। तो you will get the list of directory submission sites, and these are all do follow. See, okay, so you need to just go there and check, because if I go there and check it will take lots of time, but yes, I will let you know, you will not get any issues. आप जाओ वहाँ पे देखो कि किस तरह से आप अपनी बिजनेस को लिस्ट कर सकते, you need to just give the business name, title, description, category, and you will get all the things clear over there, ठीक है। आर्टिकल सबमिशन मींस अगर आप पोस्ट सबमिट करना चाहते हो तो यू कैन आल्सो सबमिट योर आर्टिकल ओवर देयर, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग की तरह होता है आपका आर्टिकल सबमिशन। क्वेश्चन एंड आंसर मींस अगेन वही सेम चीजें, क्वेश्चन एंड आंसर साइट्स पे जा सकते हो आप, वहां पे अपना क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, किसी और ने क्वेश्चन किया तो उसका आंसर कर सकते हो, एंड कोरा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, आप एक बार ट्राई करना, राइट। देन वीडियो, इमेज, इन्फोग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट सबमिशन, अब यहाँ से भी देखो हमारे पास बहुत सारा ट्रैफिक हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इफ वी आर क्रिएटिंग एनी वीडियो, तो वहाँ पे हम वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो है, जैसे यूट्यूब है हमारा, ठीक है, विमियो है, वी कैन शेयर द वीडियो, एंड अब तो देखो इंस्टाग्राम पे रील्स ऑप्शन इज देयर, right, IGTV option is there, we can get the good backlink from there, ठीक है। images के लिए या infographics में बात करूँ तो you can use Pinterest, right, Pinterest is a very good option for infographics, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिशन जैसे PDF है आपका, PPT फाइल आप कोई बना रहे हो प्रेजेंटेशन, देन यू कैन यूज द स्लाइड शेयर, है ना, स्लाइड शेयर लिंक्डइन का जो प्रोडक्ट है बेसिकली, स्लाइड शेयर हम कितना यूज करते हैं उसको, तो यू कैन यूज दैट टाइप ऑफ थिंग जहाँ पे आपको लगता है कि लोग ट्रैफिक है एंड दे कैन कम टू योर
पर्टिकुलर पेज जो भी आपने लिंक वहां पे दिया है, ठीक है। तो बैकलिंक का मतलब सीधे सीधे आपको बस ये समझना है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे ड्राइव करना है, कैसे विजिटर्स को लेके आना है, वो मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी मेथड्स, मल्टीपल ऑफ मेथड्स, बट आई हैव मेंशन्ड फ्यू ऑफ देम, ठीक है। तो आपको वो खुद सर्च करना है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजीज, ठीक है, या ऑफ पेज एसईओ मेथड्स आपको मिल जाएंगे। गूगल इज गूगल हैज एवरीथिंग, राइट। तो वहाँ पे देख सकते हो, यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हो। गूगल माई बिजनेस, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट एक्चुअली। गूगल माई बिजनेस, ठीक है, मतलब अपनी बिजनेस को गूगल में लिस्ट कराना, तो ये पर्टिकुलर गूगल सर्च इंजन के लिए है। एंड आई विल लेट यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर यू। गूगल माई बिजनेस में अगर आपका बिजनेस है ऑब्वियसली, या फिर आई एम टेकिंग इट एज लाइक बिजनेस नहीं है, अगर आप इंडिविजुअल अपने लिए काम कर रहे हो, ठीक है। इफ यू आर इनटू समथिंग, सम प्रोफेशन, जैसे आप ट्रेनर हो, आप ट्यूटर हो, आप सीए हो, आप डॉक्टर हो, आप यू हैव एनी प्रोफेशन, और आप चाहते हो कि खुद अपनी पर्सनल ब्रांडिंग आप करो, तो गूगल इज बेस्ट। मैं बताऊंगी अभी कैसे, ठीक है। आई विल गिव यू द एग्जांपल, ठीक है। सोशल मीडिया एंगेजमेंट, सोशल मीडिया से बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो। फेसबुक ग्रुप्स वगैरह हैं आपके, इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है, आपके लिंक्डइन, अगर प्रोफेशनल ऑब्वियसली बिजनेस B2B की बात करें तो लिंक्डइन इज देयर, ठीक है। Pinterest से यू कैन गेट लॉट्स ऑफ ट्रैफिक। टेलीग्राम से देखो आप, टेलीग्राम से आप बहुत अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हो, ठीक है। तो एक दूसरे चैनल्स को यूज करके, जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब पे डाल रहे हो, तो यू कैन शेयर इट जस्ट द शॉर्ट्स ऑफ इट ऑन इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स तो वैसे भी हैं आज के टाइम पे, बट यूट्यूब शॉर्ट्स से आप अच्छा खासा ट्रैफिक अपने चैनल पे ला सकते हो, ठीक है। अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो एंड यू हैव गुड कनेक्शंस टू बिजनेस पर्सन ओवर देयर, तो आप अपने लिंक्डइन से अपना ट्रैफिक मूव कर सकते हो टू योर वेबसाइट और ब्लॉग, ठीक है। तो आपको वो स्ट्रैटेजी सोचनी है कि ऑफ पेज एसईओ में आपको ऐसा क्या करना है जिससे आप क्या करो, ट्रैफिक को बेसिकली ड्राइव कर पाओ अपनी वेबसाइट, अपना ब्लॉग, आपका कंटेंट, व्हाट एवर कंटेंट यू हैव, या सोशल मीडिया की अगर हम बात कर लें, वेबसाइट को छोड़ो, ऑफ पेज एसईओ, सोशल मीडिया पे आपस में आपको कैसे बेसिकली जो आपके कनेक्शंस हैं उनको आपस में ऑल्टरनेट करना है। गॉट इट। तो ऑन पेज क्या था, फ्रंट एंड जो यूजर को दिख रहा है जिसके लिए हमें काम करना है। ऑफ पेज मतलब जो हमारा ट्रैफिक है उसके लिए हमें काम करना है। तो ये हमारा हो गया। और हमारा डोमेन अथॉरिटी के लिए, मतलब हमारा डोमेन इंक्रीज हो, वो कैसे होगा, टू फॉलो बैकलिंक्स बना, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड two types of SEO till now, on page, off page. Like me coming to the technical SEO, which is very important, क्योंकि आपकी वेबसाइट, चलो आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है, एंड इट इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। सो इज देयर एनी यूज, क्योंकि आज के टाइम पे मोबाइल से ही ब्राउज करते हैं, कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप इतना नहीं यूज करता, ठीक है। तो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। आपने वेबसाइट बनाई हो, वो वेबसाइट आपकी क्रॉल ही नहीं, मीन्स जिस सर्च इंजन में आपको क्रॉल कराना था उसके डेटाबेस में ही नहीं है। जैसे गूगल पे आप कोई भी, हम जाते हैं गूगल पे और अपनी क्वेरी सर्च करते हैं, तो वो वेबसाइट्स हमें तब दिखती हैं जब वो डेटाबेस में होंगी गूगल के पास। तो गूगल के पास डेटाबेस में आपकी वेबसाइट ही नहीं होगी, तो वो हमें दिखाएगा कैसे, और रैंकिंग भी कैसे कराएगा। तो क्रॉलिंग किया कि नहीं किया गूगल के बॉट्स ने, इंडेक्स कराया कि नहीं कराया, मतलब अपने डेटाबेस में उसको इंडेक्स किया कि नहीं किया, ठीक है। तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट है कि नहीं है, लोडिंग टाइम कितना चल रहा है आपकी वेबसाइट पे या पर्टिकुलर पेज का, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे। तो ये सब जो एनालिसिस होता है ये आता है आपका टेक्निकल एसईओ, ठीक है। तो टेक्निकल एसईओ आप अलग से भी कर सकते हो, देयर आर सो मेनी टूल्स, बट गूगल सर्च कंसोल इज द बेस्ट टूल, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करके टेक्निकल एसईओ वहां से कर सकते हो, ठीक है। सो लेट मी शो यू द एग्जांपल ऑफ दैट. Let me open the search console. Okay, I'm showing it to you practically because यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही बता दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि for which website I'm talking about और कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो सर्च कंसोल मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है. If you create your website, your account, then you can connect your website. ठीक है. अब यहाँ से देखो क्या होगा, आपके जो परफॉर्मेंस है, यू कैन सी, थोड़ा सा यहाँ पे करती हूँ, देखो परफॉर्मेंस, ठीक है. सो एज आई सेड, दिस इज अ न्यू वेबसाइट, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए यूज करते रहते हैं. तो आप देखोगे टोटल क्लिक्स कितने आए हैं, इंप्रेशंस कितने हैं, CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, क्लिक्स के इंप्रेशंस के कंपैरिजन में आपके क्लिक्स कितने आए हैं वेबसाइट पे, राइट. तो यू कैन मेजर इट फ्रॉम हियर. टॉप क्वेरीज कौन सी हैं, टॉप पेजेस कौन से हैं जहाँ पे क्लिक्स इंप्रेशंस आए हैं, राइट.
URL इंस्पेक्शन, जहाँ से आपका आप चेक कर सकते हो आपके पर्टिकुलर पेजेस वेबसाइट के वो क्रॉल करके गूगल ने इंडेक्स कराया कि नहीं कराया, ठीक है। सो आई एम जस्ट चेकिंग फॉर द होम पेज, ठीक है। तो होम पेज में जब मैं देखो, आप देखोगे ना URL इज ऑन गूगल, अगर नहीं होता तो यहाँ पे क्या आ जाता है, URL इज नॉट ऑन गूगल। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिंपल क्या करना था, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, दैट्स इट, बस कुछ नहीं करना। रिक्वेस्ट इंडेक्स करोगे, गूगल अपने आप से आएगा, इसको देखेगा, पेज को क्रॉल करेगा एंड इंडेक्स कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग हो गया, राइट। एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो ये चीजें हैं, कुछ मेन चीजें मैंने यहाँ पे फोकस की हैं टेक्निकल एसईओ में, जो चीज हम कवर करते हैं। फर्स्ट इज क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। तो क्रॉल करना बहुत जरूरी है उस सर्च इंजन को, आपकी वेबसाइट को, और इंडेक्स कराना मीन्स अपनी डेटाबेस में सेव करना। तो वो किससे करना है, वो सर्च कंसोल टूल से आप इजिली देख सकते हो, ठीक है। सो URL इंस्पेक्शन में जाके व्हाट यू नीड टू डू, you need to check each and every page of website whether it's crawled or indexed or not, ठीक है। then URL inspection, that is the same thing। XML साइट मैप, अब ये क्या होता है, साइट मैप होता है कि देखो जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हो सकता है हम अपनी वेबसाइट में बहुत जल्दी चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम चेंज करते हैं उसमें बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट में, मे बी पोस्ट हम डालते हैं, दिन में 2 बार डालते हैं, 3 बार डालते हैं पोस्ट हम, राइट। तो वहां पे हम ये चाहते हैं जब भी हम पोस्ट डालें या कोई नया अपडेट कर रहे हैं गूगल के बॉट्स या सर्च इंजन के बॉट्स, हमारी वेबसाइट पे आके उसको ऑन द स्पॉट क्रॉल करें और इंडेक्स करा दें डेटाबेस में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइट मैप सबमिट करना पड़ता है अपनी वेबसाइट का, ठीक है। साइट मैप, अब वो कहाँ से करते हैं, तो देखो वो भी यहीं से हो जाएगा आपका, ठीक है। साइट मैप, अब साइट मैप का इंडेक्स क्या, ऑल्दो आई हैव नॉट डन इट राइट नाउ, तो देखो मैं बता देती हूँ प्रैक्टिकली, उसका होता है sitemap.xml, ओके। जस्ट आपको ये लिखना है क्योंकि आपका यूजर नेम तो यहाँ रहेगा, एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टाइप ओवर हियर sitemap.xml, ओके। सबमिट कर देना है, आपका सबमिट हो जाएगा एंड विद इन फ्यू आवर्स ये अपडेट हो जाएगा। अभी देखो कुड नॉट फेच बोल रहा है ना, थोड़ा सा टाइम लेगा कि आपका साइट मैप हो जाएगा। ऑल्दो अगर आप अपना वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हो और योस्ट एसईओ प्लगइन जो एसईओ वाला यूज करते हो, वो ऑटोमेटिकली साइट मैप कर देता है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब किसी भी वेबसाइट का साइट मैप हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करना है, तो कैसे करोगे, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टाइप द वेबसाइट का URL एंड देन sitemap.xml। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, प्लीज बी फोकस्ड, क्योंकि साइट मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। If you work as an SEO expert, web developers will ask you need to give the code to your वेब डेवलपर, ठीक है, साइट मैप के लिए। तो देखो अभी नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि अभी हमने नहीं उसको इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो जैसे ही हो जाएगा sitemap.xml यहाँ पे हमारा शो होने लगेगा, पर्टिकुलर दिखेगा कि कौन सा पेज कब क्रॉल किया, बेसिकली कोड ने आके, सॉरी बॉट्स ने आके, ठीक है, क्रॉलर्स बोलते हैं बेसिकली, तो उन्होंने कब किया, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी साइट मैप सबमिट करना। नाउ एक पॉइंट माइंड में आ रहा होगा कि मैम ये तो चलो हमारी वर्डप्रेस पे वेबसाइट हमने यहाँ से कर लिया, बट व्हाट इफ हमारी कोडिंग में वेबसाइट बनी हुई है, तो हम साइट मैप कैसे देंगे, कोड कहाँ से जनरेट करेंगे, ठीक है। तो नो वरीज अबाउट इट, आप जाओ गूगल पे, लिखो यहाँ से साइट मैप जनरेटर, ठीक है, साइट मैप जनरेटर। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे साइट मैप जनरेटर देना है एंड यू कैन क्लिक ऑन एनी URL, इस पे कर लेते हैं फर्स्ट वन पे, ओके। सो व्हाट यू नीड टू गिव, यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट का URL देना है, ठीक है। सो लाइक इफ आई गिव माय द URL ऑफ माय वेबसाइट ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे हम ये चीज देंगे एंड स्टार्ट, ये हमारा साइट मैप बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये कोड्स बनाएगा, ये हमारे साइट मैप कोड, और उसको आप यहाँ से जैसे ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा उसको डाउनलोड कर सकते हो, एंड डाउनलोड कर लोगे तो आपका जो वेब डेवलपर है उनको आप दे सकते हो, और वो क्या करेंगे, जो उनका फाइल मैनेजर या जो भी एडमिन अकाउंट है पैनल में जाके वहां पे वो अपलोड कर देंगे साइट। बट मेक श्योर सेव कैसे करनी है फाइल, जो भी फाइल डाउनलोड करोगे उसका एक्सटेंशन होना चाहिए .xml, ठीक है, XML होना चाहिए .xml आपका साइट में। तो देख लो आप यहाँ से पूरी वेबसाइट का एक साइट मैप, मतलब मैप जैसा बना के ये पूरा कोड बना रहा है इसका, ठीक है। तो कोडिंग से वेबसाइट हो चाहे आपकी वर्डप्रेस पे हो, नाउ यू कैन क्रिएट अ साइट मैप फॉर योर वेबसाइट, ताकि आप जब भी कोई नया अपडेट करो आपकी वेबसाइट में, आपका गूगल के बॉट्स आके उसको
क्रॉल करें और इंडेक्स इमीडिएटली कर दें, जल्दी से जल्दी इमीडिएटली कर सकें। ठीक है, तो ये टेक्निकल आपका आता है इसमें। ठीक है, मेक श्योर HTTPS होनी चाहिए आपकी वेबसाइट सिक्योर। ठीक है, ये भी बहुत इफेक्ट करता है SEO के लिए। HTTPS कैसे होगी वेबसाइट, अगर HTTP है तो सिक्योर SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, तो SSL सर्टिफिकेट होता है, जैसे हम डोमेन लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं, उसी तरह से SSL सर्टिफिकेट भी आपको परचेज करना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अब तो आपको होस्टिंग जहाँ से आप लोगे वही आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, बट अगर नहीं है, इफ यू आर हैंडलिंग सम क्लाइंट वेबसाइट जिसका HTTPS नहीं है, तो आपको SSL सर्टिफिकेट से करना पड़ेगा। ठीक है, साइट लोडिंग टाइम, कि कितना टाइम ले रही है लोड होने में, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रही है लोड होने में, तो इसका मतलब आपको उसको मैनेज करना है, देखना है कहाँ प्रॉब्लम है, क्या इशू है। तो इसके लिए आप टूल कौन सा यूज करोगे, लाइक देखो यहाँ पे कोड जनरेट हो गया ना, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। फाइन, तो उसके लिए आप यूज कर लो पेज स्पीड इनसाइट्स। ठीक है, this is the best tool that you can use. Even we also get it in this thing. Here it is, page experience. But I don't have much data. That's why यहाँ पे आप देख रहे हो वो option नहीं मिल रहा. But you will get also here in search console कि आपका mobile पे loading time क्या चल रहा है, desktop पे क्या चल रहा है, right? So you can use this one. This tool is very good tool. तो यहाँ पे आप पेज का URL डालोगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट का या पेज का, you will get the results over here कि मोबाइल पे क्या स्पीड है आपका और डेस्कटॉप पे क्या है। ठीक है, और वहां पे क्या इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन सी द इंप्रूवमेंट्स एंड यू कैन डू द इंप्रूवमेंट्स ओवर देयर व्हाटएवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपकी आ जाएगी। एंड देन मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, मींस मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट आपकी यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, हियर इट इज, ये देखो मोबाइल यूजेबिलिटी। ओके, so if you have any issues कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो देखो यहाँ पे दिखेगी maybe on 9th of September it was showing one error, और वो देखो एरर क्या शो कर रहा था, बट अभी नहीं है, I have already fixed it। बट क्या एरर था, टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, मीन्स मैंने इतना कम फॉन्ट जो था मेरी वेबसाइट में, कोई पैराग्राफ में भी होगा, फॉन्ट इतना छोटा दिखा था कि इट वाज टू स्मॉल टू रीड फॉर द मोबाइल यूजर्स। ठीक है, क्लिकेबल एलिमेंट्स बहुत क्लोज थे, मींस बटन्स जो मैंने लगाए थे, या फिर मे बी हो सकता है आई हैव गिवन द हाइपर लिंक, तो वहां पे बहुत क्लोज थे एंड वो ओवरलैप हो रहे होंगे, मे बी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इश्यू होगा वो भी आपको दिख जाता है कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। फाइन, सो यू नीड टू टेक केयर कि योर मोबाइल शुड, योर वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। तो अभी आपने देखा होगा मैं वेबसाइट ज्यादा फोकस कर रही हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये एसईओ का ही पार्ट है, ये टेक्निकल एसईओ जो आ रहा है वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ही है। या मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशंस के रिकॉर्डिंग। फाइन, तो ये चीज आपको यहाँ पे आपको टेक्निकल एसईओ में थोड़ा देखना है। ठीक है, robots.txt फाइल ये थोड़ा एडवांस आ जाता है, मींस अगर ऐसी कोई फाइल है आपकी वेबसाइट में या ऐसा पर्टिकुलर पेज है जो आप नहीं चाहते कि जो सर्च इंजन के बॉट्स हैं वो भी क्रॉल करें, क्या मतलब उनको भी इंफॉर्मेशन ना पता हो, तो ज्यादातर ऐसी फाइल्स कौन सी होती हैं, ऐसी फाइल्स होती हैं आपकी एडमिन लॉगिन। ठीक है, जहाँ पे आप लॉगिन करते हो, तो आपकी वेबसाइट का जो लॉगिन है, जैसे मैंने लॉगिन किया एडमिन पैनल में। ठीक है, तो सो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ठीक है, सो मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट, तो यहाँ पे एडमिन पैनल की डिटेल्स। अब आप देखोगे कि अगर आपकी वेबसाइट में कौन सी फाइल्स डिसअलाउ है, कौन सी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डिजिटल, यानी जैसे मैं अपनी वेबसाइट का एग्जांपल दे रही हूँ, /robots.txt करना है। ओके, नाउ यू कैन सी, यहाँ पे देखो इस तरह का सिंटेक्स आता है, तो यही सिंटेक्स आपको अपने वेब डेवलपर को बना के देना है। ठीक है, कि यूजर एजेंट का मतलब कि हर एक सर्च इंजन के बॉट्स के लिए ये इंडिकेशन में दे रही हूँ। डिसअलाउ मींस WP एडमिन, क्योंकि मैंने लॉगिन देखा था आपने किससे किया था, WP एडमिन से, तो ये जो फाइल है इसका कोड मैंने सर्च इंजन्स के लिए भी क्या कर रखा है, डिसअलाउ कर रखा है, कि इसकी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन्स को भी ना पता चले। ठीक है, तो हो सकता है आपकी वेबसाइट में ऐसी कुछ फाइल्स हो जिसको आप डिसअलाउ करना चाहो। ठीक है,
ठीक है, तो अलाउ मीन्स इसका मतलब जो भी एडमिन है वो कोई चेंजेस करेगा उसके लिए अलाउ है। तो इस तरह का हमें सिंटेक्स फाइल, रोबोट्स फाइल बना के देनी पड़ती है अपने वेब डेवलपर्स को, और वो कोड में जाके इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। तो ये चीज बेसिकली, सो दिस इज द robot.txt। तो ये जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके टेक्निकल एसईओ के, राइट। स्कीमा मार्कअप थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। आई नो गाइस काफी लेंथी सेशन हो गया है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीमा मार्कअप होता है आपका व्हेन आई सर्च फॉर समथिंग, लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजी मैंने सब कुछ यहाँ पे सर्च किया एंड यू कैन सी आई एम गेटिंग सम रिजल्ट्स ओवर हियर। ओके, यहाँ पे वैसे हमें वेबसाइट दिखती है, बट बिफोर वेबसाइट URL आई कैन सी सम रिजल्ट्स ओवर हियर। ये कैसे आए? ये आए थ्रू स्कीमा मार्कअप की वजह से, है ना। फीचर्ड रिजल्ट्स है, मींस फीचर्ड में हमें ये रिजल्ट्स दिख रहे हैं, राइट। इफ आई सर्च फॉर सम लाइक रेसिपी देखते हैं, ठीक है, जैसे इफ आई सर्च फॉर सम समोसा रेसिपी, so you can see these type of results। आप देख रहे हैं ना, ratings, reviews, stars and some timings, ingredients। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं किसकी वजह से? स्कीमा मार्कअप की वजह से। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं, ये जो रिजल्ट्स आपको शो कराने होते हैं, दैट इज थ्रू स्कीमा मार्कअप एंड इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द एसईओ, ठीक है। तो स्कीमा मार्कअप जनरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कीमा मार्कअप पे जाओ, यहाँ पे लिखो स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ओके। यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे देखो पूरा स्कीमा मार्कअप जनरेट कर सकते हो आप, ठीक है। सो यू विल गेट द कोड ओवर हियर। अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हो तो योस्ट एसईओ ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, उसको आपको जरूरत नहीं है, बट इट इज फॉर दी कोडिंग वेबसाइट्स। तो आपका वो पर्टिकुलर पेज जिसके लिए आप स्कीमा मार्कअप बना रहे हो वो किससे रिलेटेड है? एफएक्यू पेज है, इवेंट का पेज है, जॉब पोस्टिंग है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, पर्सन है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे एंड यू कैन फिल दीज डिटेल्स एंड यू कैन जनरेट द कोड, ओके। एंड यहाँ से कॉपीज को कर सकते हो। फर्स्ट यू नीड टू टेस्ट दैट कोड कि वो सही है कि नहीं, तो यहाँ से देखो आप टेस्ट कर सकते हो स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल एंड यू कैन टेस्ट इट फ्रॉम हियर and once tested you can just copy that code and give it to your web developers, or you can implement it by yourself also if you have the admin rights of the admin rights or the control panel rights, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, fine। So this will be coming under technical SEO। Then last part is the local SEO। local SEO में होता है, नाम से समझ आ रहा, मीन्स लोकल लिस्टिंग। जैसे आपके जो लोकल के लोग हैं विद इन 10, 15, 20 किलोमीटर्स की रेंज में, वहाँ पे आपके कोई भी बिजनेस नेम से कोई सर्च करे या कोई कीवर्ड से सर्च करे, दे कैन सी योर बिजनेस और योर प्रोफाइल, ठीक है। सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल। When I go here and search with a keyword like best digital marketing course, ठीक है, so you can see over here CQS is ranking on number 1। so these are the results, ठीक है। अब देख रहे हो ये जो results आ रहे हैं लोकल में, जो results आप देख रहे हो ये वाले, तो ये होते हैं आपके लोकल SEO, ठीक है। तो ये Google My Business में आपको लिस्ट करना होता है अपनी बिजनेस को एंड यू कैन सी, ठीक है। यू कैन सी you can type some other keyword like digital marketing trainer, ठीक है, digital trainer, ठीक है। You can see over here my profile is ranking over here, ठीक है। So ये जो results है वो local SEO के results है and you will get lots of business if you are ranking locally also, because right now person is looking for the local services, local business, तो वहाँ से वो direction easily get कर पाए, है ना, direction website या आपको directly call कर पाए। तो you can see you need to rank on keywords, because हो सकता है आपका business का name ना पता हो लोगों को, आपका name ना पता हो, तो they will search with the keyword or their query। तो मेक श्योर जिस जो भी प्रोफेशन आपका है, जो भी आपका बिजनेस है, उस पे आपके कीवर्ड्स पे आपको रैंक करना है। तो दिस इज थ्रू द गूगल माई बिजनेस। तो आप गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बना सकते हो एंड देन यू कैन लिस्ट योरसेल्फ ऑन सर्टेन कीवर्ड्स व्हाटएवर यू लाइक, ठीक है। तो ये होता है आपका लोकल
Google My Business, and you can also insert keyword for your website. अगर website को rank कराना है, जैसे कोई लिखता है digital marketing agency near me, है ना, near me, या particular किसी city का नाम in Delhi, जैसे आप किसी और स्टेट में हो और आप सर्च कर रहे हो इन दिल्ली, तो वो वेबसाइट रैंक करनी चाहिए, या पर्टिकुलर वो गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट्स वहां पे देखने चाहिए, ठीक है। तो आप लोकल कीवर्ड्स के लिए भी रैंक करा सकते हो अपनी वेबसाइट को, like this one. I have just shared the screenshot over here. Fine. So these were the types of our SEO. Main are these types of SEO, ठीक है। वॉइस सर्च के लिए आपका सेम ही प्रोसीजर रहेगा आपका, ठीक है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड्स मींस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे फोकस करना है, और क्वेश्चंस वाले कीवर्ड पे फोकस करना है इफ यू आर गोइंग फॉर द वॉइस सर्च एसईओ, बट है सेम, ठीक है। तो ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, लोकल एसईओ, क्लियर है? आई थिंक दैट्स इट, बस कंप्लीट हो गया। हाँ, इट वाज वेरी लॉन्ग वेबिनार, बट आई थिंक कुछ समझ आया होगा थोड़ा बहुत आपको। Any issues, any doubts, any questions, you can ask me. Any questions? Nice session. It's a nice. Yes, ma'am. They liked it, and actually very when we are teaching, anybody having any session, any question? Yes, guys. Anyone? Any questions? We are open to ask. No? समझ आया या फिर कुछ भी नहीं समझ आया? That will help them when I'll teach them web, no? Web technology. They have a subject in which they have to go for analytics part, and then they use these optimization tools. Right, yes. Fine, thank you. Right. All right, ma'am. Thank you so much. I hope it will help you out. It will help the students in future when they will cover analytics part and optimization part, definitely. Right. So yeah, that's it. That's it for today's webinar. Anything else I can help you with? Anything? Ishan, Aditi, anything you want to ask? No, ma'am, everything is clear. Fine, All thank right, you so guys. much, ma'am. Yeah, welcome, ma'am. All right. See you guys. Bye-bye. Take care. It was a nice session. Bye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, welcome.